Okay, today we are going to start the chapter number 3, demand and supply. This is in fact one of the very most important chapters in your entire economics because this will build the base to understand what economics is all about. Economics के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात कर रहे होते हैं. So what do you exactly mean by demand and what do you exactly mean by supply? We are first going to start with the theory of demand. Demand refers to the willingness and ability of consumer to pay for a good or a service in a given period of time. Let's start from here. जब मैं किसी से भी डिमांड के बारे में बात करता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं दैट डिमांड रेफर्स टू the willingness and ability. किसकी होती है willingness and ability? कौन करता है चीजों को डिमांड? एक कंज्यूमर of a consumer to pay for a good or a service in a given period of time. तो जब मैं डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिकली विलिंगनेस के बारे में बात कर रहा हूं और एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं. हाँ भाई, हसन अब्दुल्ला कौन है? मैं हूं, राइट? हसन अब्दुल्ला हैज अ कार, ठीक है, एंड उनकी गाड़ी का नाम है फॉर एग्जांपल सुजुकी ऑल्टो, ठीक है. हसन भाई अभी करंटली सुजुकी ऑल्टो चलाते. हसन भाई फरारी खरीदना चाहते हैं, विलिंगनेस है. खरीद सकते हैं? नहीं. तो क्या हसन अब्दुल्ला की डिमांड है फरारी की? नो. मेक सेंस? ओके, लेट्स टॉक अबाउट अ बाइक, होंडा CD70 जो भी है. अब होंडा 70 जो है, 70cc जो है, वो मैं खरीद सकता हूं, एबिलिटी है, मगर मैं खरीदना नहीं चाहता, विलिंगनेस नहीं है. तो क्या मेरी डिमांड है? नहीं. लेट्स टॉक अबाउट होंडा सिविक. हसन भाई सिविक को खरीदना चाहते हैं, विलिंगनेस है और एबिलिटी भी है. तो क्या हसन भाई की डिमांड है सिविक के लिए? बिल्कुल है. तो when I am talking about demand, I basically mean the willingness to buy something and also having the ability to buy something. Having both basically means that you have demand. Anyways, so when I talk about demand, demand refers to the willingness and ability of a consumer to pay for a good or a service in a given period of time. आपकी ability और आपकी willingness, आप ये काम करना चाहते हैं, आप ये गुड खरीदना चाहते हैं और आप ये गुड खरीद सकते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. व्हाई डू वी यूज दिस वर्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि you will demand a good or a service in a given period of time. Time changes and probably your demand will also change, your willingness might also change, your ability might also change. So when I'm talking about demand, I'm always talking about in a given period of time. इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है. किसी और टाइम के अंदर हो सकता है ये विलिंगनेस या एबिलिटी मौजूद ना हो, तो डिमांड शायद मौजूद ना हो.
So when I'm talking about demand, demand refers to the willingness and ability of a consumer to pay for a good or a service in a given period of time. Anyways, let's move forward. Let's talk about the law of demand. This is a very, very important concept. The law of demand. तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि is there a relationship between price and the quantity of goods that you demand? Yes, there is a relationship. There is a relationship between them. But what kind of relationship is there? Is there a direct relationship or is there an indirect relationship? डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है. क्या ऐसा होता है? नहीं. जब किसी पर्टिकुलर गुड की प्राइस बढ़ती है तो इन रियलिटी हम उस गुड की क्वांटिटी की डिमांड कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के अंदर ऑरेंजेस महंगे हो गए. सो इफ ऑरेंजेस आर मोर एक्सपेंसिव, people might be less willing to buy the product or might have the less ability to buy the product, right? So when price rises, quantity demand falls, and when price falls, quantity demand rises. जब किसी पर्टिकुलर गुड की प्राइस कम होती है तो कई बार हमारी विलिंगनेस भी बढ़ जाती है उस गुड को खरीदने के लिए, और हमारी एबिलिटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है उस गुड को खरीदने के लिए. So when price of a particular good falls, its quantity demand starts to rise. So the relationship which exists between the price and the quantity demand is basically an indirect relationship, or also known as an inverse relationship. एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, दूसरी चीज बढ़ती है तो ये वाली चीज कम होती है. So there is an indirect or an inverse relationship between price and quantity demand. Okay, so what does the law of demand says? The law of demand says that there is an indirect relationship between price and quantity demand. And what does this mean? This basically means that when price of a particular good starts to rise, its quantity demand starts to fall. And when price of a particular good starts to fall, its quantity demand starts to rise. And this is basically known as the law of demand. Now let's talk about the demand curve. Now, any demand curve is a downward sloping curve. Okay, downward sloping curve मतलब नीचे की तरफ फिसल रहा है वो, नीचे जाने वाली सीढ़ियां, इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं. अच्छा, when we are making a diagram for demand or for supply, always remember that price will be on the x-axis and quantity demand will be on the y-axis. And why is that? Because in economics, whenever we are making a diagram, we always put the independent value on the numerator. Sorry, not the numerator, on the y-axis. And we always put the dependent value on the x-axis. अच्छा, अभी मैंने बहुत ही एक अजीब सी बात कह दी, डिपेंडेंट वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यू. इस कॉन्सेप्ट को पहले मैं समझाता हूं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड क्या है और कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है. अच्छा, प्राइस का क्या मतलब है? प्राइस इज बेसिकली व्हाट यू पे फॉर अ गुड और अ सर्विस टू ऑब्टेन इट, टू बाय इट, राइट? और क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांड
वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स होते हैं जो आप डिमांड करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो अगर मैं आपको प्राइस की डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, सो व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज बेसिकली द वैल्यू विच यू पे फॉर अ गुड और अ सर्विस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर मैं आपसे क्वांटिटी डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं, सो क्वांटिटी डिमांड इज बेसिकली द नंबर ऑफ यूनिट्स, वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप डिमांड करते हैं, विच यू डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल $10 पर केजी है तो मैं 5 केजी खरीदूंगा। अगर एप्पल $12 पर केजी है तो मैं फॉर इंस्टेंस 4 केजी खरीदूंगा। अगर एप्पल $14 है तो फिर मैं 3 केजी खरीदूंगा। इसी तरह 16 केजी है तो फिर मैं 2 केजी खरीदूंगा। $18 है तो फिर मैं 1 केजी खरीदूंगा। और अगर $20 है तो फिर मैं 0 केजी खरीदूंगा। सो दिस इज माई प्राइस एंड दिस इज माई क्वांटिटी डिमांड। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज माई प्राइस एंड दिस इज माई क्वांटिटी डिमांड। एक बात तो मैंने बहुत मजे की बताई नहीं कि इसमें से इंडिपेंडेंट वैल्यू कौन सी है और डिपेंडेंट वैल्यू कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दैट प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वैल्यू वेयर इज क्वांटिटी डिमांड इज द डिपेंडेंट वैल्यू। तो भाई मुझे एक बात बताओ, प्राइस इंडिपेंडेंट कैसे है? देखो प्राइस खुद चेंज हो रही है, 10 से 12 हो गए, 12 से 14 हो गए, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। मगर जब प्राइस चेंज होती है तो प्राइस का इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांड पे आता है। क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे डिपेंडेंट है। जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड कम हुई। क्वांटिटी डिमांड कम होने से प्राइस नहीं बढ़ी, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड आपकी कम हुई, और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ गई। ऐसा ही सीन है। सो since price is independent, it will be on the y-axis, and since quantity demand is the dependent value, it will be on the x-axis. ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। ये क्या है? ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड। और इस लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, इस लॉ ऑफ डिमांड की वजह से आपकी जो डिमांड कर्व है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है? क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। इसकी मैं एक बेहतरीन एग्जांपल तो बना सकता हूं। फॉर इंस्टेंस, यहां पे मैंने लिख दिया $20, यहां मैंने लिख दिया डॉलर फॉर इंस्टेंस $16, $14, $12, $8, राइट। और आप यही देखेंगे कि उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो फिर वेरी करती है। $20 पे 0 था, $16 पे 2 kgs थे, $12 पे 4 kgs थे, $8 पे आई एम अज्यूमिंग 6 kgs होंगे, राइट। तो कहने का क्या मकसद है कि जब जैसे जैसे आपकी प्राइस कम हो रही है
जैसे जैसे आपकी प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल $20 से आप $8 पे आए, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड 0 से लेके 6 kg हो गई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल यू वर एट दिस पॉइंट, $16 पे आप 2 kg एप्पल्स खरीद रहे थे, फिर प्राइस प्रोडक्ट की कम हो गई, $8 हो गई, हाफ हो गई, तो फिर आप $8 पे आप कितने खरीद रहे हैं? 6 kg खरीद रहे हैं। तो कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद ये है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। और इसका मतलब है लॉ ऑफ डिमांड। और इस लॉ ऑफ डिमांड की वजह से जो आपकी डिमांड कर्व है वो क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जब मैं डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं तो मैंने आपको बताई डिमांड की डेफिनेशन। डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी of a consumer to pay for a good or a service in a given period of time। ऐसे ही। तो मैं जब डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं एक कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा हूं। डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। मगर जब मैं मार्केट डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सारे कंज्यूमर्स की डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं। इसको मैं बल्कि इस तरह भी मुझे नहीं समझाना चाहिए। देयर इज अ बेटर वे ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर खाली 4 फर्म्स हैं, ठीक है? देयर इज यूफोन, देयर इज टेलीनॉर, देयर इज जैज, एंड देयर इज Ufone, Telenor, Jazz, and Zonk. Okay, there are like 4 firms, only 4 firms in the market. They, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को क्या प्रोवाइड करती हैं? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है? अच्छा, अगर मैं खाली यूफोन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं खाली डिमांड के बारे में बात करूं कि यूफोन की क्या डिमांड चल रही है। मगर अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, सो दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट market demand, I'm talking about that particular product entire demand which exists in the market of all consumers। मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर मौजूद हैं, जितने भी बायर्स मौजूद हैं, और मार्केट के अंदर जितने भी सेलर्स मौजूद हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं, उन उसका डेटा, उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। सो व्हेन आई इंक्लूड, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मेल कस्टमर्स एंड फीमेल कस्टमर्स। तो जब मैं मेल कस्टमर्स की डिमांड और फीमेल कस्टमर्स की डिमांड को एड अप करता हूं तो मेरी मार्केट डिमांड निकलती है। फॉर एग्जाम्पल मेल कस्टमर्स की जो डिमांड थी $10 पे 500 यूनिट्स थी। फीमेल कस्टमर्स की जो डिमांड थी वो $10 पे 400 यूनिट्स थी। तो पूरी मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है? $10 के अंदर 900 यूनिट्स। मेक सेंस कि भाई $10 के अंदर 500 यूनिट मर्दों ने खरीदे और $10 के अंदर 400 यूनिट औरतों ने खरीदे। तो पूरी मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है? 900 यूनिट। इसी तरह हम यूफोन, जैज, टेलीनॉर एंड जोंका भी बना सकते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केट डिमांड, अब इसको बहुत गौर से पढ़ना जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। व्हेन आई टॉक अबाउट market demand, it basically means
It basically means sum of all existing demand, sum of all existing demand from all firms for a good or a service in a given period of time. एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितनी भी डिमांड एग्जिस्ट करती है सारे के सारे फर्म्स की ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, एक पर्टिकुलर गुड की, फॉर एग्जांपल एप्पल की डिमांड जितनी भी एग्जिस्ट करती है पूरे के पूरे कराची के अंदर, सॉरी पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर, दैट इज मार्केट डिमांड. क्योंकि देखो कराची की डिमांड अलग है, इस्लामाबाद की डिमांड अलग है, लाहौर की डिमांड अलग है, बाकी शहरों की डिमांड अलग है. अगर सारे शहरों की डिमांड को हम ऐड कर देंगे तो उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड. So when I talk about market demand, it is the sum of all existing demand from all firms for a good or a service in a given period of time. अच्छा जी, अब मैं एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं. क्या है वो कॉन्सेप्ट? कि क्या डिमांड हमेशा सेम रहती है? नहीं, डिमांड हमेशा सेम नहीं रहती. डिमांड हमेशा सेम क्यों नहीं रहती? डिमांड हमेशा सेम इसलिए नहीं रहती क्योंकि देखो दुनिया के अंदर जो मार्केट की नेचर है, बिजनेस की जो नेचर है, इकोनॉमिक्स की जो नेचर है, वो क्या है? डायनामिक है. डायनामिक नेचर होने का मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज सेम नहीं रहती. सिंस इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज चीज सेम नहीं रहती तो हर चीज चेंज होगी. सिंस हर चीज चेंज होगी तो तुम्हारी डिमांड भी चेंज होगी. बहुत अच्छी सी एग्जांपल है. पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीजें चेंज हो रही है हर वक्त. टेक्नोलॉजी हर वक्त चेंज हो रही है. लोगों के ओपिनियंस, लोगों के टेस्ट, उनका फैशन, उनका मार्केट के अंदर ट्रेंड्स, लोगों की एबिलिटी, लोगों की विलिंगनेस, each and everything keeps changing. Since each and everything keeps changing, demand also changes and prices also change. ठीक है. अब मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं. डिमांड किन चीजों से इफेक्ट होती है? डिमांड किन चीजों से इफेक्ट होती है? डिमांड दो चीजों से इफेक्ट होती है. एक है आपकी प्राइस और एक है आपके कोई भी ऐसा फैक्टर जो प्राइस से रिलेटेड ना हो. क्या मतलब सर? मतलब डिमांड दो चीजों से इफेक्ट होती है. मतलब डिमांड पे जो असरात आते हैं वो खाली दो चीजों के आते हैं. या तो प्राइस का आता है या तो कोई भी वो चीज जो प्राइस से रिलेटेड ना हो. अच्छा, अभी इस बारे में हम बात नहीं करेंगे. इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. अभी हम बात करेंगे प्राइस के बारे में कि डिमांड का रिलेशनशिप प्राइस से कैसे है. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया दैट द रिलेशनशिप बिटवीन योर डिमांड एंड योर प्राइस इज indirect, and that basically means that when price of a particular good rises, its quantity demand starts to fall, and when price of a particular good starts to rise, sorry, when price of a particular good starts to fall, its quantity demand starts to rise, and when price of a particular good rises, its quantity demand starts to fall. Right? जैसे मैं यहाँ पे एक सिचुएशन बना रहा हूं कि जब प्राइस P0 से P1 पे गिरी तो क्वांटिटी डिमांड Q0 से Q1 पे बढ़ गई और आप A से लेके B पे आ गए. राइट? सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, there will be a movement on the demand curve. Always remember कि
जब प्राइस में कोई चेंज आता है तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आती है. Isn't that true? That is true. That is absolutely true. कि जब डिमांड नीचे हुई तो क्वांटिटी डिमांड में शिफ्ट आया, नहीं क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट हुई, ए से लेके बी पे आ गया. क्या ये डिमांड यहां से यहां चली गई? नहीं. क्या ये डिमांड यहां से यहां चली गई? नहीं. देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. प्राइस नीचे हुई, डिमांड कर्व में मूवमेंट आई. प्राइस ऊपर हुई, डिमांड कर्व में मूवमेंट आई. मगर जब कोई भी ऐसा रीजन से रिलेट न हो, डिमांड है, डिमांड आपकी शिफ्ट होगी, यहां से यहां चली जाएगी, या शिफ्ट होगी यहां से यहां चली जाएगी. सो एनी अदर रीजन अदर देन द प्राइस विल लीड टू अ शिफ्ट इन द डिमांड. क्योंकि डिमांड के अंदर जो चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, मगर डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है. So we need to show this, and in order to show this, we will shift the demand. So when is there a shift in the demand? There is a shift in the demand when any reason other than the price has an impact on the demand. प्राइस के अलावा अगर कोई भी ऐसा रीजन हो जिसका इंपैक्ट आपकी डिमांड पर आ रहा है तो आपकी डिमांड कर्व क्या होगी? शिफ्ट होगी. एंड शिफ्ट भी दो तरह से हो सकती है. इनवर्ड शिफ्ट एंड आउटवर्ड शिफ्ट. इनवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है? इनवर्ड शिफ्ट का मतलब है इनसाइड डिमांड आपकी लेस हो रही है. जब डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही होती है तो आप इनवर्ड शिफ्ट दिखाते हैं. और आउटवर्ड शिफ्ट जब डिमांड आपकी बाहर जा रही है. और डिमांड कब बाहर जाती है? जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही होती है. तो सर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनसे डिमांड आपकी शिफ्ट होगी? ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं? लेट्स रीड. इनकम. जब आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, क्योंकि आपकी एबिलिटी भी बढ़ जाएगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली विलिंगनेस भी बढ़ जाएगी. जब इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है, इनवर्ट शिफ्ट होगा. डिमांड बढ़ी, आउटवर्ड शिफ्ट. डिमांड कम हुई, इनवर्ट शिफ्ट. क्यों? ऑब्वियसली जब इनकम कम हुई तो एबिलिटी कम हुई, एबिलिटी कम कम हुई. सब्स्टिट्यूट गुड. क्या सब्स्टिट्यूट गुड से आपकी डिमांड पे इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल पेप्सी. पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो लोग कोका कोला ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि पेप्सी बढ़ गई, पेप्सी की प्राइस बढ़ गई. सो कोक की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी. तो क्या सब्स्टिट्यूट गुड से आपके प्रोडक्ट पे इंपैक्ट आता है? बिल्कुल आता है. इसी तरह अगर पेप्सी की प्राइस कम हो गई तो कोक की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे. इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है ये तो मैंने बताया नहीं. सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होता है जो आपके गुड को सब्स्टिट्यूट कर सकता है. आपके गुड को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये आपके गुड को ऑल्टरनेटिव होता है. ये आपके गुड का बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर गुड होता है या स्लाइटली सिमिलर गुड होता है, ऑल्टरनेटिव होता है, सब्स्टिट्यूट होता है. फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी. फॉर एग्जाम्पल PS4 एंड एक्सबॉक्स. अब मैं आपसे बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में. कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होता है जो आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं. जैसे मिल्क एंड टी, चाय और दूध. मिल्क एंड कॉफी, कॉफी एंड मतलब चाय और सॉरी दूध और कॉफी. और पेट्रोल एंड कार, कंट्रोलर एंड गेमिंग कंसोल. सो दीज आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनको आप साथ इस्तेमाल करते हैं. तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड से आपके गुड पे की डिमांड पे इंपैक्ट आता है? बिल्कुल आता है. फॉर एग्जांपल पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल की प्राइस महंगी हो गई तो कार्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. पेट्रोल सस्ता हो गया,
कार्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कार्स की प्राइस से तो इंपैक्ट नहीं आ रहा ना, पेट्रोल की प्राइस से कार्स की डिमांड पे इंपैक्ट आ रहा है, पेट्रोल की प्राइस से कार्स की डिमांड पे इंपैक्ट आ रहा है। इसी तरह पेप्सी की प्राइस से कोका कोला की डिमांड पे इंपैक्ट आ रहा है। सो दीज आर द रीजंस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ योर गुड। अगर आप कोका कोला हैं और किसी और चीज के एक्शन की वजह से आपकी डिमांड पे इंपैक्ट आ रहा है, सो दैट इज नोन एज अ नॉन प्राइस फैक्टर। This is a reason which is not related to the price of your product and still having an impact on your demand. So this is a non-price factor. इसी तरह एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जब आप करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस पे तो चेंजेस नहीं ला रहे। एडवर्टाइजमेंट जब करते हैं तो क्या उसका इंपैक्ट आपकी डिमांड पे आता है? बिल्कुल। अगर पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट हुई है, अच्छा इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल डिमांड बढ़ जाएगी। अगर लोगों का, कंज्यूमर का रिएक्शन अच्छा नहीं आया उस एडवर्टाइजमेंट पे, वायरल हो गई, गलत हो गई, वो गलत तरीके से वायरल हो गई आपकी एडवर्टाइजमेंट, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम भी हो सकती है। सो यस, एडवर्टाइजमेंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड। इसी तरह आपकी कंज्यूमर की जो फैशन है, हैबिट्स है, टेस्ट है और इकोनॉमी में जो ट्रेंड चल रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल। अगर ट्रेंडिंग में है चीज तो डिमांड होगी, ट्रेंडिंग में नहीं है चीज तो डिमांड नहीं होगी। क्या इसका ताल्लुक प्राइसेस से है? अभी फिलहाल नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी इंपैक्ट आपकी डिमांड पे आता है। अगर गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज बना रही है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा चार्ज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हैं तो डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग सेव करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। तो यस, आर दीज रीजंस रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट? नो, but will they have an impact on your demand? Yes. So these are known as the non-price factors. This will either decrease your demand and will show an inward shift, or this will either increase your demand and will show an outward shift. जब increase होता है तो outward shift होता है, और जब decrease होता है तो inward shift होता है। And these are the reasons which are not related to your demand. Okay, let's continue with the theory of supply. तो जैसे मैंने आपसे डिमांड के बारे में बात करी थी, वैसे ही मैं आपसे सप्लाई के बारे में भी बात करूंगा। अगर आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो जब मैं सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं, सप्लाई इज ऑल्सो द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर। जब मैं डिमांड के बारे में बात कर रहा था, इट वाज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, मगर जब मैं सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं, इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ गुड और अ सर्विस in a given period of time. तो जब मैं सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं, तो विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए एक प्रोड्यूसर की टू प्रोड्यूस अ गुड और अ सर्विस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब? विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होनी चाहिए। विलिंगनेस मतलब इस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए आपके अंदर चाहत भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोशियोलॉजी ONA लेवल पढ़ाना चाहता हूं, मेरे अंदर विलिंगनेस है, मगर क्या मैं पढ़ा सकता हूं? नहीं, एबिलिटी नहीं है। मैं अकाउंटिंग ONA लेवल पढ़ा सकता हूं, एबिलिटी है, क्या पढ़ाना चाहता हूं? नहीं, विलिंगनेस नहीं है, एबिलिटी है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ा सकता हूं और पढ़ाना चाहता भी हूं, तो सप्लाई है। So supply is the willingness and ability of a producer to produce a good or a service in a given period of time. जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड होता था, वैसे ही आपका लॉ ऑफ सप्लाई भी है। तो जब मैं लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड? Is there a relationship between price and quantity?
yes, there is a relationship. किस तरह का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर ज्यादा गुड्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार होता है, और जब प्राइस कम होती है तो सप्लायर कम गुड्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार होता है. क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है प्रोड्यूसर कहता है हाँ भाई मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ. जब उसको कम पैसे मिलते हैं प्रोड्यूसर कम पैसे देने, कम क्वांटिटीज प्रोवाइड करने के लिए तैयार होता है. सेम गोस फॉर मी. इफ समवन is ready to pay me a higher price, I would be ready to offer more of my services in terms of teaching. But obviously पैसे कम होंगे, मोटिवेशन कम होगी, शायद सप्लाई मेरी गुड्स एंड सर्विसेज की कम हो जाए. And this is the law of supply. When price of a particular good rises, its quantity supply starts to rise. And when price of a particular good starts to fall, its quantity supply starts to fall. So there is a direct relationship between price and quantity. And for this reason, for this particular reason, when we are making the diagram for the supply curve, obviously we will first make the x-axis, and on the x-axis we will keep the price, because price is the independent value, and in the y and on the x-axis we will keep the quantity demand. On the y-axis we will keep the price, and on the x-axis we'll keep the quantity demand / quantity supply, basically the quantity. And your supply curve will be an upward sloping curve. Why will it be an upward sloping curve? This will be an upward sloping curve because of the law of supply. Because the law of supply says that when price of a particular good rises, its quantity supply starts to rise. And when price of a particular good starts to fall, its quantity supply starts to fall as well. As you can see from the diagram, this is happening. कि जब मेरी प्राइस P0 से P1 पे आई तो मैं Q0 से Q1 पे चला गया और पॉइंट A से पॉइंट B पे चला गया. And this is basically the law of supply, and for this reason there is a direct relationship between price and quantity supply, that when price of a particular good rises, its quantity supply also rises, and when price of a particular good falls, its quantity supply also falls. So sir, any reason related to the price will have a movement on the supply curve, but any reason which is not related to price will have a shift on the supply curve. तो कोई भी ऐसी वजह जो प्राइस से रिलेटेड नहीं है, उसका इंपैक्ट आपकी सप्लाई कर्व पे शिफ्ट के तरीके से आएगा. या तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी या तो आपकी सप्लाई कम होगी. सप्लाई बढ़ेगी तो आउटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई कम होगी तो इनवर्ड शिफ्ट, सेम एज बिफोर. तो सर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं सप्लाई के? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर एक पर्टिकुलर गुड को बनाने की कॉस्ट बढ़ रही है, लैंड एक्सपेंसिव हो रहा है या लेबर एक्सपेंसिव हो रही है या कैपिटल एक्सपेंसिव हो रहा है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है. अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी. ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा है तो एक गुड को बनाना मुश्किल हो गया तो सप्लाई कम होगी. कॉस्ट कम है तो एक गुड को बनाना सस्ता हो गया, आसान हो गया, तो सप्लाई ज्यादा होगी. टैक्सेस ज्यादा होंगे तो सप्लाई कम होगी, क्योंकि गुड बनाना मुश्किल हो गया, महंगा हो गया. टैक्सेस कम होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि गुड बनाना आसान हो गया, सस्ता हो गया. सब्सिडीज होंगी तो फिर सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि आपको गवर्नमेंट खुद पैसा दे रही है इस पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए, और गुड सस्ता भी होगा. इसी तरह सब्सिडीज अगर मिली तो फिर प्राइस तो सप्लाई कम होगी. सब्सिडीज अगर नहीं मिली तो सप्लाई कम होगी, क्योंकि सारी की सारी प्रोडक्शन हमने खुद करनी है. टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो इसका इंपैक्ट यूजुअली पॉजिटिव आता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से एफिशिएंसी आती है, और एफिशिएंसी की वजह से आउटपुट बढ़ता है, और आउटपुट बढ़ने के मतलब सप्लाई बढ़ रही है. और टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली इफ देयर इज अ सडन चेंज इन द इकोनॉमिकल टर्म्स और टेक्नोलॉजी गायब हो जाए तो डेफिनेटली सप्लाई एक पर्टिकुलर गुड की भी कम हो जाएगी. प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स.
दूसरे गुड की कीमत का इम्पैक्ट भी आपकी सप्लाई पे आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एक्ट एज अ सिग्नल टू प्रोड्यूसर्स टू मूव द रिसोर्सेज टू द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फार्मर्स आर लाइकली टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ कॉर्न एंड रेज द सप्लाई ऑफ राइस। वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल विच इज रिटन ओवर हेयर कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लैंड है, ठीक है, 500 यार्ड्स का एक लैंड है, उधर आप या तो चावल बना सकते हैं या तो चीनी बना सकते हैं, एक एग्जाम्पल है। तो अगर चावलों की कीमत बढ़ रही है तो फिर आप, आपके पास जो लैंड मौजूद है आप उसको क्या करेंगे? चावल में इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, आप कहेंगे कि इसमें मैं शुगर की जगह राइस बना लूं। आई एम श्योर, शायद मुझे इतने एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं है कि एक ही लैंड के अंदर शुगर एंड राइस बना सकते हैं, बट लेट्स अज्यूम अगर बना सकते हैं तो व्हाट वुड यू डू? अगर राइस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, एज अ सप्लायर यू वुड वांट टू प्रोवाइड मोर ऑफ राइस। एज अ टीचर आई हैव ओनली 2 hours लेफ्ट इन मी, कि मैं 2 घंटे और पढ़ा सकता हूँ हर हफ्ते। या तो मैं बिजनेस पढ़ाऊं या तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं। ऑब्वियसली जिसमें मुझे ज्यादा प्राइस मिल रही होगी एक कंज्यूमर से, मैं उस गुड को सप्लाई करने के लिए ज्यादा रेडी हूंगा। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ गुड। बट इस केस के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि किसी और गुड की प्राइस का इम्पैक्ट आपकी सप्लाई पे डायरेक्ट आता है। ऑब्वियसली if you have because in this world you have limited resources and उन limited resources के अंदर आप limited products बना सकते हैं। So obviously as a producer you would want to produce a particular good which is giving you the highest outcome, highest profitability, the highest prices. So yes, दूसरे गुड की प्राइस से भी आपकी सप्लाई पे इम्पैक्ट आता है। टाइम से भी इम्पैक्ट आता है। अगर किसी पर्टिकुलर गुड को बनाने में टाइम बहुत लगता है तो उसकी सप्लाई कम है। अगर किसी पर्टिकुलर गुड को बनाने में टाइम कम लगता है तो उसकी सप्लाई ज्यादा है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से भी सप्लाई बढ़ती और कम होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम कम लगता है और सप्लाई बढ़ जाती है। और टेक्नोलॉजी, यही सारी की सारी रीजन है। वेदर वेदर कंडीशंस अगर फेवरेबल हैं तो फिर सप्लाई ज्यादा होगी, वेदर कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हैं तो सप्लाई कम होगी। So these are the reasons which are not related to your price and will still have an impact on the supply of your particular good.